Welcome you students in this particular ninth standard introductory lecture of science. So we should introduce first the concept of science. What is it? So the term science is came from Latin term scientia, meaning the knowledge, and which have experimental support, which have practical applications, and based on observations, inferences, and not simply on logics. Okay, but this science is multidimensional and has hundreds of branches, out of which we had to study some, like physics, chemistry, biology, biotechnology, microbiology, environment science, space research, everything. Okay, so ninth standard syllabus is divided into two major categories or papers. We have part 1 and part 2, right? So these two are actually collection of entire syllabus. Part 1 include physics and chemistry. Similarly, part 2 include complete package of biology, environment science, study of temperature, study of related weathers, okay, study of microbes, microbiology, study of new modern techniques, biotechnology, study of information technologies, ICT, information and communication technologies. So it is a diverse branch, okay, and there is a great biodiversity as well. We have to concentrate on this later on, but initially we have to introduce all these things. So physics, here there is a study of physical principles, forces, velocity, momentum, okay, and many other related things, physical processes. And here, as the name indicate, there is study of different chemical interactions within living organism, within cell, their tissues, as well as in laboratory, in a test tube, in a beaker, conical flask. Okay, we have to study all those aspects, interactions of chemicals here and their importance. So part 1 and part 2 constitute our entire science paper, right? Divided into two, part 1, part 2. So originally science is for 100 mark, okay? 100 mark means there are two partitions, part 1, part 2, and there are two theory papers as well. This particular for 40 mark and that also for 40 marks. 40, 40, 80 and 20 are reserved for practicals. That much practicals are important in science, okay? So it is totally based on practical. So part 1, it consists of 40 marks theory, and part 2 also consists of 40 marks theory, right? And rest 20 marks are reserved for practicals. 10 mark here practical, 10 mark there practical. But a session, our annual session, is divided into two semesters called term exams, terminal exams you can say. So there are two different term exams. Let me show you about details of terminal examinations, including paper pattern, so that you can aware about exam pattern. So that theory and practical. Theory and practicals. Theory 80 marks, practical 20 marks, total 100 marks are there for science, right? But we know that there are two different term exams, term 1 and term 2. Throughout the year you have to study, okay? There may be terminal examination, there may be test examinations, there may be different surprise testings in school as well as high tuitions, okay? But these are the major exams you have to face throughout the year, term 1 and term 2, okay? These two exams. Term 1 exam is based on 10 chapters. How much? 10 chapters. It is based on 10 chapters. And term 2, it is based on 8 chapters. Total 18 chapters we have in our syllabus, okay? 10 chapters, term 1 exam, 8 chapters, term 2 exams, right?
ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा आपका, ये सेकंड सेमेस्टर होगा, ठीक है ना। सो इन फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आउट ऑफ दिस 10 चैप्टर्स, earlier or initial 5 chapters are from paper first, ठीक है। इसमें से 5 चैप्टर्स जो होंगे वो पेपर फर्स्ट से होंगे, और नेक्स्ट 5 जो चैप्टर्स होंगे फ्रॉम 6, 7, 8, 9 and 10, ओके। तो ये बिलोंग करते हैं बायोलॉजी को, राईट। याच्यामध्ये काय आहे, बायो कंप्लीट बायोलॉजी, ज्याला आपण म्हणूया पेपर सेकंड, राईट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्म टू एग्जाम सिमिलर होगा, राइट। यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर में 4 चॅप्टर्स होंगे और सेकंड पेपर में 4 चॅप्टर्स होंगे, ठीक आहे, समजते आहे, राईट। येथे 10 चॅप्टर्स आहेत, पहिले 5 पार्ट 1 मध्ये आहे, सायन्स 1 मध्ये आहेत, आणि बाकीचे 5 जे असतात ते सायन्स 2 चे आहेत, ओके। 5 अर्धे अर्धे। और यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ 8 चैप्टर्स 4 बिलोंग टू फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड रेस्ट ऑफ द 4 बिलोंग टू बायोलॉजी, राइट। तो इस तरह हमें टोटल 18 चैप्टर्स पढ़ने थ्रू आउट द ईयर, बट हम स्पेशली कॉन्सन्ट्रेट करेंगे ऑन पेपर सेकंड, राइट। पेपर सेकंड बद्दल आपण डिस्कस करूया, कंप्लीट डिस्कशन, बट काही गोष्टी सेम आहेत फर्स्ट अँड सेकंड पेपरमध्ये, ते तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे। येथे मी सांगतोय पेपर पॅटर्न, ठीक आहे, थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा, व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर यू। सो हियर वी हॅव टू डिस्कस पेपर पॅटर्न। As far as 9th standard is concerned, there are 2 terminal exams as told earlier, right? But in first term, you had to study 10 chapters. In second term, you had to study 8 chapters, right? Clear? But when there will be your second terminal examination, you have to study 8 chapters in detail for 80%, 80%, and 20% of that question paper or that exams depend on first terminal syllabus. समजून राहिलं? जेव्हा तुमचं सेकंड टर्म एक्झाम होणार, त्या सेकंड टर्म एक्झाममध्ये 80% सिलेबस हा 8 चॅप्टरचा असेल, जे नंतरचे 8 आहेत, ओके, सेकंड टर्मसाठी। बट 20% सिलेबस हा पहिलेचा 10 चॅप्टर्सचा रिझर्व राहील, म्हणजे 20% क्वेश्चनिंग कशावर होणार, आधीच्या 10 चॅप्टर्सवर, आणि बाकीचे 80% क्वेश्चनिंग होणार समोरच्या 8 चॅप्टर्सवर। सो यू हॅव टू रिमेंबर डेटा थ्रू आउट द इयर, आणि ही मेथड तुम्हाला 10th मध्ये कामी येईल। 10th मध्ये सायन्स 1 मध्ये 10 चॅप्टर असतात, सायन्स 2 मध्ये 10 चॅप्टर असतात, टोटल 20 चॅप्टर्स असतात, आणि एक्झाममध्ये बोर्ड एक्झाममध्ये प्रत्येक चॅप्टरवर क्वेश्चन येतो, राईट। आणि 9th स्टँडर्डवरही क्वेश्चन येतो, बिकॉज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स हे पूर्ण 9th स्टँडर्ड सिलेबसवर डिपेंड आहेत। दॅट्स हाऊ 9th स्टँडर्ड सिलेबस इज कॉल्ड फाउंडेशन सिलेबस, ओके। सो दॅट इज युअर बेसमेंट फाउंडेशन फॉर 10th. You have to face 10th examination, board examination, first ever next year, right? So you have to make yourself prepared for that. And here paper pattern, which is almost similar to 10th standard, okay? This 9th standard syllabus is almost similar to 10th board syllabus, or we can say exam pattern, right? So let us discuss first. In all, there are 5 questions. So question number 1 in your paper, 40 mark theory paper, whether science 1 or science 2, that carry total 5 questions, ठीक है। आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन, ठीक, जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन से बनता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, ठीक है। इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन को 1 मार्क होगा, प्रत्येकाला 1 मार्क असणार, ठीक। आणि असे आपल्याला 5 मार्क्सचे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आवश्यक असणार, कंपल्सरी 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसमें क्या आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इन आवर एग्जामिनेशन, ओके। तो आपने याद रखना है, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। देयर मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, देयर मे बी ऑड वन आउट, राइट, देयर मे बी एनालॉजी, ओके, देयर मे बी ट्रू false, okay, there may be certain special category questions which belong to 1 mark, okay. So you have to study complete fill in the blanks, odd one out, analogy, true false, right, everything you have to study for these 5 marks, very important. It has diversity, especially fill in the blanks वो आपको learn करने पड़ेंगे,
देन इज क्वेश्चन 2. क्वेश्चन सेकेंड ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा और इसमें आपके लिए है फिर से 5 डिफरेंट क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को रहेगा 1 मार्क. ठीक है, ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसमें भी आपको टोटल स्कोर 5. और ये होता है प्रैक्टिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी दोनों यहाँ पे आपको इक्वली पढ़ने होंगे. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज गिवन एंड देयर आंसर्स लाइज इन वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस जितने भी होंगे उसमें करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा. दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है ना. देन क्वेश्चन 3, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, तीसरी कैटेगरी आपको बता है. यहाँ पे क्या होगा, अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे होंगे, राइट. और हर क्वेश्चन को यहाँ पे 2 मार्क होंगे. ओके, बट यहाँ पे आपके लिए चॉइस होगी. चॉइस किस टाइप की होगी, यहाँ पे आपको दिए रहेंगे अबाउट 7 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ दिस 7 क्वेश्चंस. तो हर क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं. आपको गिवन 7 क्वेश्चंस में से कितने सॉल्व करने हैं, 5, राइट. तो इस तरह आपको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 10. उसके लिए सब करेक्ट भी लिखना पड़ेगा, कंडीशंस अप्लाइड. ओके, देन अनदर कैटेगरी क्वेश्चन 4. इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हर क्वेश्चन को बट इस बार 3 मार्क होंगे. ओके, और फिर से आपको 5 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे आउट ऑफ गिवन 7 और आपको टोटल मार्क्स 15 मिल जाएंगे. कंडीशंस अप्लाइड. देन फाइनली लार्ज मेगा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को 5 मार्क होंगे, राइट. बिगेस्ट क्वेश्चन 5 मार्क. और इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से 1 सॉल्व करना होगा. आपको 2 दिए रहेंगे क्वेश्चन्स, 2 क्वेश्चन्स दिलेले असतील त्यापैकी 1 अटेम्प्ट करावा लागेल. जे बेटर तुम्ही सॉल्व करू शकता बघायचं आणि सॉल्व करायचं. ओके, आणि मिळवायचे आउट ऑफ 5 मार्क्स. सो दैट्स हाउ यू कैन से 10, 10 एंड 20. ओके, दैट इज 20-20. ये हो गया आपका 40 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, द बिगेस्ट वन. ओके, लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये 5 मार्क क्वेश्चन. आणि याच्यामध्ये 2 दिलेले असतात, एकच अटेम्प्ट करावा लागते, राईट. पॉसिबली त्यामध्ये ड्रॉ करायचं, चार्ट्स ड्रॉ करायचे, डिफरंट टाईपची माहिती द्यायची. रॅदर दॅन रायटिंग सिम्पली theoretical content, you have to try some extra for 5 mark question. Okay, and here there is we can say 3 mark आहे प्रत्येक क्वेश्चनला. आणि 3 मार्क्स मिळवणं इतकं सोपं नसतं, नाही का. 2 मार्क्ससाठी छोटं मॅटर चालून जाईल, एक्सेप्टेबल. बट 3 मार्क्ससाठी एक्स्ट्रा अटेम्प्टची गरज पडते आणि थोडंसं क्वालिटी आन्सर आवश्यक असतं, राईट. तेव्हाच तुम्हाला 3 मार्क्स मिळतील, अदरवाईज 2 मिळतील, त्याच्यापेक्षा कमी मिळू शकतं. ओके, पॉसिबल. तर येथे चॉईसेस आहेत बट स्टडी शिवाय हे शक्य नाही. ओके, बट सर्वात डेंजरस क्वेश्चन्स असतात हे व्हेरी शॉर्ट. ओके, त्याच्यामध्ये चूक होण्याची शक्यता जास्त आहे. हे तर लिमिटेड क्वेश्चन्स आहेत ना मोठे, याला तुम्ही छान प्रॅक्टिसने स्टडी करू शकता. तुम्हाला ते नॉलेज नेहमी लक्षात राहण्यासारखं असतं. बट येथे व्हेरिएशन्स भरपूर असतात. एक चॅप्टरमध्ये आपण म्हणूया अबाउट हंड्रेड्स ऑफ असे फिल इन द ब्लँक्स निघतात, नाही का. ऑड वन आउट्स निघतात आणि तशाच प्रकारे एनालॉजिकल क्वेश्चंस निघतात. ट्रू फॉल्स इसका तो कोई नंबर ही फिक्स नहीं, कितने भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू स्टडी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस. ओके, तो ये रहा आपका 40 मार्क का थियरी पैटर्न फॉर साइंस 1 एज वेल एज साइंस 2. और बाद में होता है प्रैक्टिकल 10-10 मार्क का, दोनों का टोटल 20 मार्क्स. ठीक है, इस तरह का आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमने आपको बताया डिफरेंट वैरायटी है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही है और यहाँ पे बहुत बहुत वेरिएशन है. ओके, येथे क्वेश्चन शॉर्ट आन्सर टाईप येऊ शकतं, ज्यामध्ये तुम्हाला आन्सर करावं लागणार ब्रीफमध्ये. मग यामध्ये सायंटिफिक रिझनिंगचा क्वेश्चन येतो, राईट. याच्यामध्ये मग डिफरन्सिएशनचा क्वेश्चन येतो, राइट. यामध्ये मैच द पेयर येऊ शकता 2 मार्क्ससाठी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और यहाँ पे कोई डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, स्पेशली इन सेकंड पेपर यानी कि पार्ट 2. ओके, बट चॉईसेस असल्यामुळे बरं आहे, तुम्ही छान प्रकारे इझिली ते करू शकता. तर हे झालं आपलं पेपर पॅटर्न. आणि चांगली गोष्ट अशी की हाच पेपर पॅटर्न 10चा पण आहे, बरोबर. सो आपला टार्गेट हा 10च आहे, बरोबर ना. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसी को कहते हैं, राइट. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन.
यू विल बी फेसिंग इन नेक्स्ट कमिंग ईयर, राइट। बट देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, 9th स्टैंडर्ड में भले ही आपके पास 18 चैप्टर्स हो, बट सिंप्लीफाइड वे से अगर आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ओके। एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, सेकेंड पेपर, तो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है फ्रॉम 6th चैप्टर, राइट, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ओके। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तर हा आपला चैप्टर नंबर 6 आहे। त्यानंतर 7, 8, 9, 10, ओके। उधर फिर एनर्जी फ्लो आपको आएगा इन एन इकोसिस्टम, राइट। उसके बाद हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ोगे, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ओके। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, और लास्ट में आप पढ़ोगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज सुपर्ब एज वेल, ओके। तो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है इसमें, लेकिन आपको इंटरेस्ट इसमें मेंटेन रखना चाहिए, ओके, तब आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमें डील कर लेना है, ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज नथिंग बट 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। हाँ, रॉबर्ट विटेकर, ये सिस्टम आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, और वो सिस्टम डिपेंड है ऑन 5 डिफरेंट किंगडम्स, राइट। और वो किंगडम कैसे है ये हम यहाँ दिखा देते हैं। किंगडम मीन्स द हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट रैंक होता है। आपको यहाँ दिखेगा होप्सो, यहाँ पे हम लिखते हैं 5 डिफरेंट किंगडम रहने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन given by Robert Whittaker. So according to Robert Whittaker, organisms can be divided, classified on the basis of their cell. So whether this cell is prokaryotic or eukaryotic, we can classify them. इस चैप्टर में सब कुछ किस पे डिपेंड है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ओके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये मे बी प्रोकैरियोटिक हो सकता है सेल, समोर आपण शिकणार प्रोकॅरियोटिक म्हणजे असा सेल ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतो, ज्याच्यामध्ये मेजर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस, ये सब गायब होते हैं, ओके। ऐसे सिंपल सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और दूसरी कैटेगरी होती है यूकैरियोटिक, राइट, मॉडर्न सेल। आपला सेल, प्लांटचा सेल कसा असतो, यूकॅरियोटिक असतो, ओके। सो प्रो म्हणजे प्रिमिटिव्ह, आणि त्याच्यामुळे बघा याच्यात प्रिमिटिव्ह सिंपल ऑर्गॅनिजम्स असणारा किंगडम ज्याला म्हणायचं मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा वो किंगडम है जिसमें आते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक, समझ गए ना। हाँ, और यूकैरियोटिक, इसमें अभी आप देख सकते हो 2 कैटेगरीज होते हैं यूकैरियोटिक में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बट सब में कुछ टाइप का सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। यूनिसेलुलर में फिर से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा होप्सो, ये हम आपको बता देते हैं, राइट, अपने याद रखना है। यूनिसेलुलर जो रहता है वो हो सकता है विद सेल वॉल, दिसत नसेल ऐका, ठीक है, विद सेल वॉल, और ये होता है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, राइट। और फिर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन इससे जोड़ देते हैं, ये इस तरह, ओके, यहाँ पे लाइक दिस, अब आप समझ पाओगे, विदाउट सेल वॉल। तो इसके जो किंगडम है वो हमें यहाँ लिख लेने हैं। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, इसमें हम लिखेंगे प्रोटिस्टा, कौन सा लिखेंगे, प्रोटिस्टा। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर में विदाउट सेल वॉल, ऐसे कौन रहते हैं विदाउट सेल वॉल, एनिमल्स, एनिमेलिया, इसका किंगडम कौन सा आएगा, एनिमेलिया। देखिए विद सेल वॉल फिर से 2 होते हैं, अगर आप देख पाते हो नीचे, ठीक है। विद सेल वॉल यहाँ पे रह सकते हैं प्लांट्स, रहने वाला प्लांटी, और साथ में रह सकता है फंजाई, ओके, और फंगी। तो ये रहे 5 डिफरेंट किंगडम्स, राइट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ठीक है ना। तो ये 5 डिफरेंट किंगडम्स में विटेकर ने क्लासीफाई तो कर दिया सारे ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ये बहुत बड़ा रैंक है, ठीक है। लार्जेस्ट बिगेस्ट रैंक हुआ ना किंगडम, किंगडम से छोटा सब किंगडम, फिर आप देख सकते हो क्लास है, उसके बाद ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस, स्पीशीज। तो ये सब छोटे छोटे रैंक हमें पढ़ने होंगे, तब जाके आप ऑर्गेनिजम्स को इजीली समझ पाओगे, ओके।
So as per five kingdom system is dependent, we should know about five different names actually. Those five different names from Monera to Animalia, okay, having different contrast characteristics. तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किस पे डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन, इसके बारे में है ये टॉपिक. लेकिन चैप्टर का नाम क्या है आपने फिर से रिकॉल करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एक्चुअली बेस्ड ऑन किंगडम प्लांटी. तो इसमें हम कंप्लीट किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, नॉट अबाउट एनिमेलिया, अबाउट फंजाई, ये सब चीज़ें इसमें नहीं आएगी. ओके, you should remember this chapter 6 is based on different criteria, or we can say different divisions, subdivisions included in kingdom plantae. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 6, राइट. इसका स्टार्टिंग हम करेंगे इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर. अब टिल हमने सिंपली क्या देखा है, हमारा सिलेबस क्या है हमने देखा है, और पेपर पैटर्न हमने देखा है, राइट. सो दिस लेक्चर is based on information only, introductory lecture था. लेकिन next lecture में हम पढ़ेंगे everything about classification of plants. Hope so you get something about a syllabus, idea आपको एक मिल चुका है, ठीक है. So thanks for watching and be ready for next lecture. Thank you.